So students, You can continue. as you know that mixtures are of two types, homogeneous and heterogeneous. Homogeneous mixtures are those mixtures in which any two or more different types of metals mix in such a way that जो mixture बनता है, it has uniform compositions and uniform properties throughout. Whereas heterogeneous mixtures are the mixtures in which properties or composition is not uniform throughout. Homogeneous mixtures are actually called as solutions, and heterogeneous mixture, as you have done in junior classes, heterogeneous mixtures are of two types, colloids and suspensions. So colloidal solutions we'll discuss in other chapter is there. There we'll discuss about colloids, but in this chapter we'll discuss about solutions as the chapter named itself. So now you can define solution. Solutions are homogeneous mixtures of two or more मतलब दो या दो से ज्यादा chemically non-reactive. This is very important to mention here कि कोई भी चीज उसमें chemically react नहीं करनी चाहिए. Two or more chemically non-reacting substances in such a way that composition and properties of the mixture remains constant, then that mixture is said to be a solution. Clear now? The solutions are homogeneous mixtures of two or more chemically non-reacting substances whose, you can say, proportions can be varied in certain limit. मतलब उनकी proportions आप किसी भी में रेशियो में उनको मिक्स कर सकते हो, बट दे मस्ट नॉट रिएक्ट केमिकली विद ईच अदर, और इतने अच्छे से मिक्स होने चाहिए कि आपको थ्रू आउट मिक्सचर में एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन मिलता है, देन दैट मिक्सचर इज सेड टू बी सॉल्यूशन. एंड सॉल्यूशन इज कंसिस्टिंग ऑफ टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, solute and solvent. Larger component which is capable of dissolving or mixing the smaller one is said to be solvent, and the smaller component of the solution is said to be solute. So this is a general, you can say, introduction of the topic solution. Now next thing in your chapter is that types of solutions. What are various types of solutions? Types of solutions are actually solutions. Basically, they are classified on the basis of which solvent is there. मतलब जो larger component है वो उसकी physical state क्या है, उसके base पे हम solutions को basically main three categories में classify कर सकते हैं. Solid solutions, liquid solutions, and gaseous solutions. ठीक है. सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट, बेसिकली जो फिजिकल स्टेट हम डेली लाइफ में बेटा चीजें यूज कर रहे हैं, दे आर एग्जिस्टिंग इन थ्री डिफरेंट फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज फिजिकल स्टेट्स ऑफ सॉल्वेंट, solutions are classified into three types: solid solutions, liquid solutions and gaseous solutions. But as you know that second component solute is also there, और solute की भी physical state इन तीनों में से कोई भी हो सकती है. तो again एक solid solution में जो solute होगा उसके बेस पे इसके फर्दर फिर थ्री टाइप्स होते हैं. When a solid is dissolved in solid, when a liquid is dissolved in solid, or when a gas is dissolved in solid. Clear? Solid solvent लिया हमने, solute उसमें हमने वेरी कर सकते हैं हम. It may be a solid, it may be a liquid, or it may be a gas. Now, can anyone tell one example in which a solid is dissolved in another solid? दो solids का mixture, homogeneous mixture. Can anyone tell example? Alloys. Alloys, very good. Variety of alloys are there which we are dealing with daily life. So many like brass, bronze, stainless steel, German silver, variety of, you can say, alloys are existing in our daily life.
So these alloys are solid in solid type of solution. Next, if we dissolve a liquid in solid, anyone who can give example? This is a type of solution in which liquids are dissolved in solid. Sugar in water. Yes? Sugar in water. Liquid is dissolved in solid. थोड़े अमाउंट में लिक्विड चाहिए, ज्यादा अमाउंट में सॉलिड. अगर आप शुगर बहुत ज्यादा ले लोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगी. फिर शुगर इन वाटर इज अ काइंड ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन. वो सोल्यूशन जो होगा सॉलिड फेज में होगा, बट उसमें कुछ अमाउंट में लिक्विड मिक्स होगा. कैन एनीवन एल्स हु कैन टेल? गेस. अभी आपने एलॉयज का एग्जांपल लिया, उसमें हम दो सॉलिड मेटल्स को मिक्स कर रहे हैं या कोई सॉलिड दिया. बट इफ वी टेक वन लिक्विड एंड वी मिक्स इट विद अ सॉलिड मेटल लाइक मर्करी इज अ लिक्विड मेटल, तो जितने भी मर्करी के एलॉयज हैं, एलॉयज ऑफ मर्करी आर कॉल्ड एमल्गम्स. एमल्गम्स कहते हैं मर्करी के एलॉयज को. दीज एमल्गम्स आर अ काइंड ऑफ लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन. सॉल्यूशन की जो कैटेगरी आ रही है वो लिक्विड कैटेगरी. बेटा हमने ऐसे करनी है, सॉल्यूट का नाम पहले लेना है, उसकी फिजिकल स्टेट एंड देन फॉलोड बाय फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट. तो लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन इज एग्जांपल इज एमल्गम. और एक एग्जांपल आप दे सकते हो, आपने ये भी 10th क्लास में पढ़े हैं, some salts have tendency to absorb water और वो हाइड्रेट हो जाते हैं. तो जितने भी हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं उनके सॉलिड्स की जो अंदर वेकेंट स्पेसेस होते हैं उनके बीच में वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो जाते हैं. तो दीज क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स और हाइड्रेटेड सॉल्ट्स आर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड इन सॉलिड. तो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स यू कैन आल्सो राइट हियर. नेक्स्ट इज गैस इज डिसॉल्व्ड इन सॉलिड. एक सॉलिड मेन जो कंपोनेंट है सॉल्वेंट वो सॉलिड है, उसके अंदर कहीं ना कहीं पे गैस मिक्स हुई हुई है, कितने भी अमाउंट में हो सकती है. सॉल्यूशंस में कॉन्सेंट्रेशन कैन बी वेरी. आपको अभी सिर्फ हम कैटेगराइज कर रहे हैं हम कि हमारे सराउंडिंग्स में कितने टाइप के ऐसे मिक्सचर्स हैं. कैन एनीवन टेल? गैस इज डिसॉल्व्ड इन सॉलिड. हाइड्रोजन इन पैलेडियम. यस बेटा. हाइड्रोजन इन पैलेडियम. कल प्लैटिनम पैलेडियम, ये जो आपने कैटलिस्ट की एग्जांपल भी 10th में पढ़े हुए, रादर 11th में भी अब आपने कर लिया है कि these metals are used as catalyst because they have a strong tendency to absorb hydrogen or other gases on their surface. क्योंकि उनकी सरफेस पे बहुत ज्यादा फ्री वैलेंसीज होती है, तो वहां पर वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं इन गैसेस को अपने ऊपर. ठीक है. तो दिस इज हाइड्रोजन और अदर गैसेस absorbed over nickel, platinum or palladium. These are examples of gas in solid. Next, liquid में अगर हम चलें तो liquid में भी again आपको 3 categories मिल जाएंगे. Solid in liquid, solid liquid में mix किया. Second category if we dissolve liquid in liquid, and third if we are dissolving gas in liquid. These are very simple examples. Solid and liquid अभी आप लोग डिस्कस कर रहे थे, शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशंस. कोई भी एक सॉल्ट, आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना रहे हैं, कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन बना रहे हैं, सोडियम, मतलब एनी टाइप ऑफ सॉल्ट विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर, इट विल मेक अ सॉल्यूशन सॉलिड इन लिक्विड. तो कैटेगरी क्या होगी? सॉलिड इन लिक्विड. ओके. इवन वाटर अगर सॉल्वेंट नहीं है तो सम अदर सॉल्वेंट कैन आल्सो बी टेकन टू फॉर्म सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल बेंजीन कैन बी डिसॉल्व्ड इन टॉलुइन. दोनों ही नॉन पोलर लिक्विड्स हैं, बट सॉरी आई एम टॉकिंग अबाउट सॉलिड इन लिक्विड ना. तो कोई ऑर्गेनिक सॉलिड अगर आप डिसॉल्व कर पा रहे हो किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, जैसे अल्कोहल में हम डिसॉल्व कर सकते हैं कोई ऑर्गेनिक सॉलिड्स को, तो दे कैन आल्सो बी अ काइंड ऑफ सॉलिड. नेक्स्ट, लिक्विड इनटू लिक्विड. अल्कोहल इन वाटर, विनेगर जो हम बना रहे हैं घर में यूज कर रहे हैं, एसिटिक एसिड इन वाटर, वो भी लिक्विड सॉल्यूशन. तो जितने भी लिक्विड्स आपस में मिक्स होकर सॉल्यूशंस बनाते हैं, दे आर कैटेगराइज्ड एज लिक्विड इन लिक्विड. बेंजीन इन टॉलुइन, बेंजीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑल दीज आर लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन. नेक्स्ट, गैस इन लिक्विड. नाउ दिस इज आल्सो वेरी सिंपल.
example that you are using in daily life also. Can anyone tell? Gas dissolved in liquid. Oxygen in water. Voice is not clear. Please speak again. Dissolved in liquid is जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हो, वेदर इट इज सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, इवन एक्वेटिक, जितने भी वाटर बॉडीज हैं, इवन जो वाटर हम घर में भी यूज कर रहे हैं ना बेटा, दैट इज ऑल्सो dissolved in carbon dioxide and oxygen gases are always dissolved in water. अब वो सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा ज्यादा अमाउंट में उसमें मिक्स हो जाता है, तो बाकी सोल्यूशन आप कैटेगराइज उसमें आप नॉर्मल ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व्ड इन वाटर, बिकॉज दैट इज द बेसिस ऑफ लाइफ यू कैन से फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म. जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो पानी में मिक्स हुई हुई ऑक्सीजन ही एब्जॉर्ब अपने ब्रीद इन कर पाते हैं. ठीक है, तो दैट इज any gas dissolved in water can form a kind of gas in liquid. Now third category, gaseous solutions. Gaseous solutions again three types: solid dissolved in a gas, liquid dissolved in a gas, or a gas dissolved in a gas. Who will tell examples? Solid in gas solution. Solid in gas. डस्ट और स्मोक इन जितने भी ऐसे सॉलिड्स हैं जो इजीली सबलाइम हो जाते हैं या वेपराइज वॉलेटाइल सॉलिड जिनको हम कहते हैं, दीज जैसे नेफ्थलीन बॉल्स है, आप एयर में जब भी ओपन में उनको रखते हो थोड़े टाइम बाद दे गॉट डिसअपियर ना, बिकॉज रीजन इज दे दीज काइंड ऑफ सॉलिड्स व्हिच कैन सबलाइम एट रूम टेम्परेचर इटसेल्फ या थोड़ा हीट करने पे भी, तो वो उनकी जो वेपर्स मिक्स हो गई है गैस एयर के अंदर, व्हेनेवर टेम्परेचर कहीं पर उनको ऐसा मिलता है तो वो वापस मतलब गैस से वापस वो सॉलिडिफाइड फॉर्म में आ जाते हैं, बट दे रिमेन एज अ फॉर्म ऑफ मिक्सचर. ठीक है, तो नेफ्थलीन, आयोडीन और यू कैन से sublimable solids, camphor, they are present or vaporized in the air or नाइट्रोजन गैस में भी उनको हम मिक्स कर सकते हैं. तो दीज आर काइंड ऑफ सॉलिड इन गैस एग्जाम्पल. लिक्विड इन गैस, लिक्विड्स आर डिसॉल्व्ड इन एनी गैस. वाटर वेपर. वेरी गुड. ह्यूमिडिटी जो हमारे अराउंड एयर में प्रेजेंट है, वाटर वेपर, और इसको हम मिस्ट कह सकते हैं, फॉग कह सकते हैं. वैसे फॉग्स को जनरली फॉग एंड मिस्ट को कोलाइडल सॉल्यूशंस में कैटेगराइज करते हैं, बट ह्यूमिडिटी यू कैन राइट हियर एज वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर. ओके, अदरवाइज कुछ हाईली वॉलेटाइल लिक्विड्स, उनको जब आप ओपन करते हो एयर में, जैसे एसीटोन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, ये बहुत जल्दी वेपोरेट हो जाते हैं और वेपोरेट होके ये लिक्विड इन एयर मिक्सचर बना देते हैं. तो क्लोरोफॉर्म इन एयर or water vapor present in air, all these are examples of gas, liquid in gaseous mixture. Now gas in gas, simplest solution which we are, एटमॉस्फेयर. which is present everywhere around us. What is that? Air. Air is a mixture of various gases, as you know, and always remember one thing, that air के अलावा अगर आपको कोई भी एग्जांपल देना है बेटा, कोई भी गैस, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है गैसेस की, कि वो जब भी आप एक गैस को दूसरी गैस के साथ मिक्स करते हो वो हमेशा होमोजेनिटिकली मिक्स होती हैं, बिकॉज गैसेस हैव नेग्लिजिबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. देन ऑलवेज रिमेंबर, अ मिक्सचर ऑफ एनी 2, 3, 4, 5 गैसेस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ सॉल्यूशन. तो गैसेस, कोई भी गैसेस का मिक्सचर है, आपको कैटेगराइज करना, इट विल ऑलवेज बी अ सॉल्यूशन. वो कभी भी कॉलॉइड्स या सस्पेंशंस नहीं बनाते. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ याद रखना है. गैस इन गैस इज ऑलवेज अ काइंड ऑफ homogeneous mixtures because of this important property of gases, that they have almost negligible forces of attraction. तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने देखा कई लिक्विड एक किसी लिक्विड में मिक्स नहीं हो रहे हैं, कुछ सॉलिड है जो कुछ लिक्विड में मिक्स नहीं होते, बट गैसेस ऑलवेज मिक्स विद ईच अदर टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर. तो एनी
मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, किसी भी दो या दो से ज्यादा गैसेस का मिक्सचर हमेशा उनका सोल्यूशन ही फॉर्म करेगा। ओके, तो दिस इज अबाउट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है विद एग्जांपल एंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, वहां पे सॉल्यूट, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट और नेम ऑफ सॉल्यूशन एंड साथ में एग्जांपल्स के साथ पूरा टेबल बना हुआ है बुक में। इफ यू हैव बुक्स यू कैन गो थ्रू, अदरवाइज आई हैव डिस्कस्ड इट राइट नाउ। यू कैन आल्सो नोट डाउन साइड बाय साइड इफ यू वांट टू। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। Actually, duster is not so. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब सॉल्यूशन तो हमने देख लिया क्या है, और ये बहुत ज्यादा यूजफुल भी हमारी लाइफ में, बिकॉज इन एवरीडे लाइफ वी आर मेकिंग वेराइटी ऑफ सॉल्यूशंस एट होम। इवन द मेडिसिन विच वी आर यूजिंग, चाहे वो मेडिसिन सॉलिड है, टैबलेट्स की फॉर्म में है या कोई सिरप की फॉर्म में है, दे आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन यू कैन से। और आपने हमेशा कभी उनके लेबल पे पढ़ा होगा, उस पर 30% या जितना भी उनका कॉम्पोजिशन है, इट इज ऑलवेज मेंशन्ड ओवर देयर। बिकॉज अगर हम कोई सोल्यूशन बना रहे हैं तो घर में तो हमें जरूरत नहीं पड़ती कि हमने उसमें कितना, मतलब क्या चीज डाला उसको लेबल आउट करने की, बट अदरवाइज इन इंडस्ट्रीज और इन मेडिसिनल साइंस इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नो what type of or what you can say substances are mixed and in which proportion, because if we don't know the proportion then those things are of no use, because medicines are to be taken in by human beings, so their composition must be known at a at you can say very perfect, उसको हमें पता करना आना चाहिए, या मतलब जब भी आप उस इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट for you to know about that composition of any medicine or any solution which is used in that particular industry. So this is very important part of the chapter, किस तरह से हम concentration को express कर सकते हैं, और ये चीज हमने 11th में की हुई है, but still we will revise it again. एक तो हम एक डेली लाइफ में थोड़ा सा जो क्लासिफाई करते हैं कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में, अगर हम कहें कि हमें क्वालिटेटिवली बताना है एक सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन, तो हम लैब्स में जैसे यूज करते हैं डाइल्यूट HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो इन क्वालिटेटिव टर्म्स वी कैन यूज दीज सिंपल टर्म्स। डाइल्यूट का मतलब होता है जिसमें सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है, और कॉन्सेंट्रेटेड वो होते हैं जिनमें सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन मतलब कंपैरेटिवली ज्यादा है। ठीक है, बट जस्ट एक इतना बता दिया कि डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है तो इससे पर्पस सॉल्व नहीं होता। So we need to know what amount of solute is present in that particular solution. So that is why we need various terms to express the concentration of a particular solution. So concentration में सबसे पहले है percentage. Percentage 3 फॉर्म में यूज होता है, mass percentage, volume percentage, mass by volume percentage. These are the 3 common terms which is used to express concentration in very simple aspect. Mass by mass percentage है mass of solute over mass of solution multiplied by 100. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, बिकॉज हम पर 100 ग्राम सोल्यूट का मास अगर हम फाइंड आउट करते हैं कितना है तो वो उसकी परसेंटेज देगा। तो परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है किसी भी सब्सटेंस का उस सोल्यूशन में 100 अगर हम पार्ट्स उस सोल्यूशन को कंसीडर कर रहे हैं तो 100 में से कितने पार्ट्स सोल्यूट के प्रेजेंट। ओके, तो वी कैन these definitions you all must be knowing. Mass percentage is mass of solute present in 100 gram of solution is called mass percentage. Volume percentage is volume of solute present in 100 milliliter of that particular solution, and weight by volume is generally gram में हम लेते हैं solute का mass और milliliters में हम लेते हैं solvent का liquid, अगर solvent है और solid उसमें dissolved है, then what mass of solute is present in 100 milliliter of that particular solution, that is known as
mass by volume percentage. So it's very simple. Next, second जो है that is strength. Second is strength. Strength का मतलब होता है, अभी हमने देखा मास परसेंट लिया हमने, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन फिक्स कर दिया और उसमें सॉल्यूट का मास कितना है, दैट इज इट्स परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन. बट इफ वी कंसिडर, सपोज हमने 40 ग्राम सॉल्ट 1 लीटर वाटर में डाल दिया, मतलब 1 लीटर अगर आपने सॉल्यूशन बनाया और उसमें कितना अमाउंट आपने सॉल्यूट का डाला, 100 ग्राम की जगह अगर हम 1 लीटर ले ले सॉल्यूशन, then it is said to be strength. So strength, you can write the definition if you want. Mass of solute present in 1 liter of solution. Mass of solute present in 1 liter of solution is known as its strength. Okay. Next is जो इम्पोर्टेंट है बेटा, मोल्स में अगर हम बात करें, अभी तक तो हम ग्राम्स में बात कर रहे हैं, तो यूनिट परसेंटेज के लिए कोई यूनिट नहीं है. स्ट्रेंथ की जो यूनिट आती है दिस इज ग्राम पर लीटर जनरली, बिकॉज वी आर टेकिंग सॉल्यूशन इन लीटर, तो यूनिट इज टेकन एज ग्राम पर लीटर. बट अब आपको पता है केमिस्ट्री में परसेंट ग्राम से भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट टर्म आता है वो है मोल. तो अगर हम मोल की टर्म में कॉन्सेंट्रेशन को डिपिक्ट करते हैं, then we have 3 important terms here which we have already done class 11. Molarity. Anyone who can tell molarity? Molarity. Number of moles present in 1 liter of a solution. सेम स्ट्रेंथ और मोलारिटी में जो एक थोड़ा सा रिलेशन आपको याद रखना है, स्ट्रेंथ 1 लीटर सॉल्यूशन में ग्राम कितना है सॉल्यूट का, वो उसकी स्ट्रेंथ है, और मोलारिटी जो है वो मोल्स पर लीटर, जो यूनिट है मोलारिटी का दैट इज मोल पर लीटर. अगर हम मोलारिटी को जो डिनोमिनेट करते हैं वो कैपिटल एम से करते हैं, स्ट्रेंथ को जनरली एस से डिनोट कर देते हैं. मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स of solute over volume of solution multiplied by 1000. अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे मिलीलीटर में यूज कर रहे हैं, then you need to put 1000 here. If you are using volume of solution in liter only, then no need to put 1000 over there. ठीक है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बच्चे छोटी सिंपल सी कैलकुलेशंस में करते हैं. तो ऑलवेज रिमेंबर, बिकॉज यूनिट और उसकी जो डेफिनेशन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज टू बी मेंशन्ड हियर इन लीटर, then no need to put 1000 if you are writing, क्योंकि जनरली हम केमिस्ट्री में बेटा थोड़े थोड़े वॉल्यूम्स यूज कर रहे हैं, तो वहां मिलीलीटर्स टर्म आपको मिलती है न्यूमेरिकल्स में. तो फॉर दैट पर्पस फॉर्मूला इज क्रिएटेड इन दिस फॉर्मेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 1000. नेक्स्ट इज मोलारिटी. Molality. Molality is number of moles of solute present in 1 kilogram of solvent. अब यहाँ जो different है इन दोनों में, molarity is taken with amount of solution, but molality is dealt with amount of solvent only, which is also mass of solvent. ये volume of solution है, यहाँ mass of solvent use कर रहा है. तो definition you can write number of moles of solute present in 1 kilogram solvent. So definite formula would be small m से इसको डिपिक्ट करते हैं बेटा, and this is number of moles of solute over mass of solvent in grams
because we are using mass in grams, so we have to write 1000 over there with the formula. So exact formula is number of moles of solute over mass of solvent multiplied by 1000. और अगर हम इसको सिंबॉलिकली लिखते हैं तो n is equal to small n over this is W of solvent multiplied by 1000. And as you know that number of moles n can be related with the given mass of solute. ठीक है, तो आप मास से सीधा n निकाल के वो फॉर्मूला भी डायरेक्टली पुट कर सकते हो. डजेंट मैटर, जो मेन फॉर्मूला है आप उसको किसी भी फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन. And unit of molality is mole per kilogram. Next is mole fraction. Mole fraction is represented by this letter chi. X की तरह लगता है, but otherwise it is chi pronounce करते हैं इसको, Greek letter है. And anyone who can tell what is mole fraction? भी टर्म से थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है. फ्रैक्शन हम मैथ्स में पढ़ते हैं ना, होल का कोई एक पार्ट, तो ये मोल फ्रैक्शन है. मतलब एक मिक्सचर में जितने टोटल मोल्स प्रेजेंट हैं उसमें एक जिस कंपोनेंट की आप बात करो, दोनों के लिए हम फाइंड कर सकते हैं, सॉल्यूट के लिए भी सॉल्वेंट के लिए भी, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का कितना पार्ट प्रेजेंट है उस पूरे होल में. तो वही आपको रेशियो निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute plus solvent both. Formula will be mole fraction. Suppose if we have a solution containing two components A and B, तो किसी भी एक component का mole fraction अगर आपने निकालना है, number of moles of A over number of moles of A and B both, दोनों को add कर दो. ठीक है, और आपको बेटा +2 में अभी जो चैप्टर है सॉल्यूशंस, इसमें हमने बाइनरी सॉल्यूशन से डील करने. बाइनरी सॉल्यूशंस मींस सॉल्यूशन व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स. तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं तो एक कंपोनेंट का अगर आपने सपोज फाइंड कर लिया, तो दूसरे कंपोनेंट का, क्योंकि फ्रैक्शन क्या होता है, होल के पार्ट्स है ना, तो टोटल हम होल कंसीडर करते हैं 1 को. तो सेकंड कंपोनेंट जो होगा उसका मोल फ्रैक्शन होता है is always 1 minus xa. So you can find out by this method. Simple, दोनों के find करने की जरूरत नहीं है. So we can say that in a solution, mole fraction of all components, sum of mole fraction of all components is always equal to 1. अगर बाइनरी की जगह मतलब टर्नरी सॉल्यूशन है, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन है जिसमें 3 या ज्यादा अमाउंट जो कंपोनेंट्स है वो प्रेजेंट है. सपोज इफ वी हैव अ सॉल्यूशन हैविंग 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स A, B, C, D, तो व्हाट विल बी द टोटल, यू कैन से सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन A, मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C, मोल फ्रैक्शन ऑफ D will always be equal to 1. तो मोल फ्रैक्शन, sum of mole fraction of all the components present in a solution is always equal to 1. This you need to remember. And mole fraction, as it is a ratio of moles, so it has no unit. Now very important thing that you need to mention here, आप लिख सकते हो, जो इंडस्ट्रीज में ये मेथड्स यूज हो रहे हैं इनमें से कॉन्सेंट्रेशन मेथड जो ज्यादा प्रेफर करते हैं दैट इज मोलैलिटी. मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शंस आर प्रेफर्ड ओवर मोलैरिटी because molarity is dealing with volume of